شہد انسان کے لیے قدرت کی عطا کردہ بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے انسان کے لیے جتنی غذائی نعمتیں خلق کی ہیں ان میں سے شہد کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ شہد ایک قدرتی پیداوار ہے۔ اس کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو مختلف پھولوں جیسا ہوتا ہے جن کے رس سے مل کر شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں۔ سورۃ النحل 14 سپارے قرآن عظیم شان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کے لیے وحی کیا، وحی کہ آپ پہاڑوں میں سے اور درختوں میں سے اور چتوں میں سے اپنا گھر بنا لی اور اللہ کے راستے میں آپ تکلیف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلے جائیں اور ہر قسم کے میووں پھلوں میں سے جمع کریں، اور وفیہ شفاء للناس، پورا انسانیت کے لیے اس میں شفا ہے۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے عبدالرحمان گزشتہ 38 سالوں سے ہنی بی فارمنگ کے کاروبار سے منسلک ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہنی بی فارمنگ گو کہ ایک انتہائی محنت طلب کام ہے، لیکن وہ خدا کے شکر گزار ہیں کہ وہ حلال طریقے سے روزی کما رہے ہیں۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں پشاور کالا مائل مویشیہ منڈی کا رہنے والا ہوں اور تقریباً 38 سال سے میں ہنی بیز یعنی شہد والی مکھی میں کام کرتا ہوں، تجربی انداز میں الحمدللہ پورا تجربہ حاصل ہے۔ عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ شہد سازی کی تاریخ گو کہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ پہلے ہمارے آباء و اجداد دیواروں میں سوراخ بنا کر اس میں مکھیاں رکھتے تھے، مگر جب شہد نکالنے کا مرحلہ آتا تو ساری مکھیوں کو مار کر شہد نکالا جاتا تھا۔ تاہم اب جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ طریقہ انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو ہم تو پرواہ بھی نہیں کرتے، تھوڑا نظریاتی طور پر ہم تجربی کام کرتے ہیں نا۔ پہلے زمانوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دیواروں کے اندر لوگوں نے مکھی رکھتے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ کام کرتے تھے، دیواروں میں کچھ سوراخ جگہ بنا کے اس میں مکھی رکھتے تھے، اس سے شہد نکالتے تھے، لیکن کوئی مشینری و ٹیکنالوجی وغیرہ چیز نہیں تھی، فارم سسٹم نہیں تھا، وہ تو سارے مکھی کو ضائع کر تو ماکو نکالتے تھے، یعنی شہد نکالتے تھے۔ تو الحمدللہ ابھی فارم سسٹم جو ہے نا آسٹریلیا سے اور برطانیہ سے یہاں مکھی آئی ہیں، لوگوں نے خرید کر، میرے خیال میں تقریباً 40-42 سال سے پاکستان میں مکمل طور پر یہاں تو یہ کام شروع ہوئے اور ہم نے بھی اس میں داخلہ لے لیے ہیں۔ مکھی کے مختلف اقسام ہے، کئی نہیں کہہ سکتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوگا، میں نے بتایا کہ میں نے اس بارے میں نظریاتی PhD نہیں کیا، بلکہ تجرباتی تجربات ہے جو ہم جانتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں جو موجود ہیں ایک وطنی مکھی ہیں کہ وہ ہماری مکھی کی سائز میں برابر مکھی ہے تقریباً، صرف اس میں ایک لکیر، کالی لکیر زیادہ ہوتی ہے، وہ جو دیواروں میں لگتی تھی نا وہ وطنی مکھی ہم کہتے ہیں۔ ایک تو ہم کشمیری یا جنگلی مکھی کہتے ہیں، بڑی مکھی ہیں درختوں میں وہ گھر رکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے رکھتے ہیں۔ ایک اس سے چھوٹی مکھی ہے تو دوسری اس سے بھی چھوٹی مکھی ہیں جو جنگلوں میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مکھی، اس کے شہد بھی بہت مزیدار شہد ہوتے ہیں۔ فارم والے میں جو ہے نا آسٹریلین نسل جو ہے نا، آسٹریلین اور 3 نسلیں ہمارے پاس فارم میں ہیں۔ ایک تو ہے انڈین نسل ہم کہتے ہیں، ایک تو برٹش نسل جو ہے نا برطانوی، اور ایک جو ہے نا آسٹریلیا سے آئی ہوئی مکھی ہیں، اور اس میں نسلوں میں تھوڑا فرق ہے، ابھی مکس ہو گئی ہے۔ اس لیے میں کہوں کہ ایک فارم میں انڈین نسل بھی ہے، آسٹریلین بھی ہے، برٹش بھی ہے، وہ تینوں کے ایک ساتھ مل جول ہوئے ہیں، ابھی تقریباً ایک نسل بن گئے درمیانہ مکس۔ اور یہ فارم مکھی ہم کہتے ہیں زیادہ شہد بھی لاتے ہیں، مزیدار بھی ہیں، زیادہ کاٹتے بھی نہیں۔ فارم میں شہد ایک خاص قسم کے ڈبے سانچے میں بنتا ہے جو کہ شہد کی مکھی کے چھتے نما ہوتا ہے۔ ایک ڈبے میں تقریباً 10,000 مکھیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ قدرتی شہد کو چھتے سے نکالنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے اور ماہر شخص ہی اس طریقے سے شہد نکال سکتا ہے، تاہم فارم کے ڈبوں سے شہد مشینوں کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ عبدالرحمان نے مزید بتایا کہ پوری دنیا میں ہنی بی فارمنگ کے لیے پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں۔ یہاں 12 مہینے مکھیوں کے لیے پھول ختم نہیں ہوتے، جو کہ قدرت کا ایک تحفہ ہے۔ تاہم جب پھول نہیں ہوتے تو اس صورت میں انہیں چینی دی جاتی ہے تاکہ مکھیاں بھوک سے نہ مر جائیں۔ پاکستان الحمدللہ میں یہی کہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے کہ مکھی کے لیے بہت مناسب ہے، اس لیے کہ 12 مہینے میں تو مکھی کے لیے تو پھول نہیں ختم ہو جاتا ہے۔
यहाँ तो पुल ख़त्म हो जाता है सर्दियों के मौसम में। पंजाब एरिया में ख़ासतन ये बहावलपुर इलाके में, हासिलपुर इलाके में आगे पीछे पूरा सरसों वाले पुल होते हैं, पूरा सर्दियों के मौसम में माकी के लिए काफ़ी होते थे। बाहर में तो ये सटाल वाला पुल आ जाता है, पुलाई आ जाती है। बीरी वाली शायद पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुल्क भर में खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर इसकी बाकायदा मंडियां लगती हैं, जहां डब्बों समेत मक्खियां बेची और खरीदी जाती हैं, और यहां से ही शहद खलीज ममालिक, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया बल्कि यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरा पाकिस्तान में जो मेन मार्केट है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में तना फार्म है, और इसके साथ जो नई मार्केट बन गया है तकरीबन चमकनी के नज़दीक में, वहाँ न्यू हनी मार्केट है। वो माशाल्लाह बहुत बड़ा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ से सप्लाई हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से सऊदी अरबिस्तान, कुवैत, दुबई, कतर, यहाँ तो तकरीबन उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की तरफ भी हमारी साथ जाती है, अफ़गानिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान के पूरा टैक्स भी बन जाते हैं, लेकिन वो बाद में बताऊँगा कि हमारे गवर्नमेंट से हम थोड़ा नाराज़ हैं। जारी शहद के हवाले से अब्दुल रहमान ने बताया कि सिर्फ बेरी वाले शहद के अलावा मौसम सरमा में तमाम शहद जमते हैं। जम जाने से मुराद ये हरगिज नहीं कि शहद जाली है, बल्कि ये असली शहद की निशानी है। हो सकता है, लेकिन जो हमारे मार्केटों में मिलते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी के साथ, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ मार्केट में जो फार्म के नाम पे है इसमें कोई गलती नहीं, इसलिए ये दुकानदार लोग ख़रीदते नहीं उस किस्म के शहद। अलबत्ता चीनी हम देते हैं, फार्म वाली चीनी देते हैं, लेकिन वो भूख के वक्त में देते हैं। जब भूख लगती है ना माकी को, भूख दफ़ा करने के लिए देते हैं। जब शायद पुल लग जाता है, पुल के बाद लोग चीनी देते नहीं, इसलिए ये मिलावट नहीं। अलबत्ता एक किस्म है, वही है कि लोग वहम करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल में थोड़ा शरह करना चाहता हूँ। वही है कि सर्दियों के मौसम में ये शहद जम जाता है ना, जो घी जम गई है ना, इस किस्म के लोग यही वहम करता है कि ये जाली शहद है, हालांकि ये बात नहीं। अभी इस वहम की वजह से बाज़ी तिजार लोग, बाज़ी बिजनेसमैन, बाज़ी दुकानदार वो शहद गर्म करते हैं, और इसमें हो सकता है गर्म करने से कोई मिलावट भी हो, इस वजह से कि ना जम जाए। असलन सर्दियों में बीरी के बगैर, बीरी वाली शहद नहीं जम जाता, और सर्दियों में हर किस्म के शहद सख्त सर्दियों में ज़मीस्तान में जम जाते हैं। और जम होना ये इसका मतलब नहीं कि अच्छा शहद नहीं, ये ओरिजिनल का निशानी है, लेकिन हमारे लोग इसमें वहम करते हैं। जब जम गया ना, बोलते हैं ओहो हो इसमें चीनी है, हालांकि वो चीनी नहीं, जो जैली शहद है वो नहीं जम जाता। जिस तरह इंसानों में कोई वबा आती है तो उन्हें वैक्सीन लगती है, इसी तरह जब मक्खियों में कोई वबा आती है तो इन्हें भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, क्योंकि मक्खियों को जूं की बीमारी लग जाती है जो इन्हें खाने लगती है। इसलिए इसे ख़त्म करने के लिए मक्खियों को शीरे में दवाई मिलाकर दी जाती है। मैंने आपको खुराक भी दिखा दिया, फीडर हम इसमें रखेंगे। उस फीडर में उसके लिए सूखी चीनी भी डाल सकती हैं, वो आटा करेंगे और वो सूखी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो शरबत करेंगे पानी में, और उसमें दवाइयाँ भी डालते हैं हर किस्म के। हम एंटीबायोटिक भी देंगे जब बीमारी आ जाती है। इसमें किस्म की बीमारियाँ हैं, 3-4 किस्म के मेड है, जूं जब बोलते हैं ना, जो इंसान में होता है, तो वो जो पूरा बीमारियाँ हैं, बच्चे ख़राब करते हैं, बच्चे खाते हैं, पूरा तकलीफ़ देते हैं। तो जो दफ़ा करने के लिए हम सल्फ़र भी इस्तेमाल करते हैं, सल्फ़र नहीं, गुगड़, वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो मेडिसन है इंसानों के, एम्पिक्लॉक्स वगैरह से ताकत के लिए भी दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। और जानवरों की कुछ दवाइयाँ हैं, जो पिनोविट एक किस्म के इंजेक्शन है, हम इसको देते हैं। मतलब पूरा दवाइयाँ हम देते हैं, देखभाल करते हैं, इसके मायना करते हैं, देखते हैं बीमारी है नहीं, उसके बाद उसके लिए मुनासिब टाइम में हम इसको दवाई देंगे। अब्दुल रहमान कहते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जाता। पाकिस्तान से सालाना हज़ारों टन शहद बरामद होता है, मगर बदकिस्मती से ये शोबा हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली में बेरी का दरख्त लगाकर इस शोबे के बारे में बात की थी, जिससे फार्म मालिकान खुश भी हुए, मगर इससे कारोबारी अफराद को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि उल्टा हमारे किराए बढ़ गए। असल बात यह है कि ये कमाई तो कारोबार तो बहुत अच्छा कारोबार है, एक तो हलाल कारोबार है। दूसरी बात यह है कि ये कमाई भी मुनासिब है, प्रॉफिट इसमें है, लेकिन
मसाइल आजकल बन गया है वो ये है कि हमारे ये जो इलाका है मैंने बताया पूल के मौसम की वजह से बहुत मुनासिब है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर की तरफ से कुछ कमियां हैं, हमारे ताउन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं। और इसके अलावा जो है ना मैंने बताया कि पुलिस की तरफ से तकलीफ़ है, कोई मुनासिब हमारे गवर्नमेंट में कुछ दफातर भी है इसके नाम पे एग्रीकल्चर में हनी बीज के दफातर हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन असल बात यह है कि 38 साल में मैंने कोई डायरेक्टर अभी तक नहीं देखा कि मेरे फार्म पर आया होगा या किसी फार्म के साथ उसने ताउन किया होगा। रहनुमाई कुछ नहीं है, असल वो खुद जानते नहीं। सच बात ये बताऊँ, उसने जर्मनी में लंदन में PhD किया होगा ना, लेकिन तजुर्बी किस्म के हमारे किस्म का उसका कोई ताल्लुक है नहीं, कोई इल्म है नहीं, कोई फ़न है नहीं उनके पास। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा शोबा जो है ना ये हनी शोबा है, लेकिन इस बारे में कोई तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं। हमारे वज़ीर आज़म साहब इस साल ने एक बात बताई, बहुत फार्म वाले खुश थे, लेकिन हालांकि वो बात भी हमारे लिए नुकसान में थी। वो इसलिए कि वो मियावाली में उसने एक तकरीर में बता दिया कि यार बीरी वाली दरख्त जो है मुनासिब है, ऐसे हनी शहद बन जाते हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बना। एक दरख्त भी काश किया है उसने, लेकिन उसके लिए हमारे नुकसान किया आपने नहीं बताया कि किया। उसके पीछे नहीं बता दिया कि बीरी के लिए लोग रखते हैं कैसे। तो अभी वो लोग समझ में आए कि हाँ बीरी तो इतना अच्छी चीज़ है। अभी हमारे लिए किराया बन गया, अभी एक महीने में हमारे से 30,000 40,000 रुपये वो लोग एक जगह रखने में, खाली जगह में, पहाड़ी जगह में, तो 30-40 हज़ार रुपये हमारे से किराया लिखते हैं। मियावाली में, करक में वगैरह जगह में जहाँ बीरी है। नहीं ज़मीन वाले प्राइवेट लोग, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सप्लाई, कोई रहनुमाई, कोई चीज़ नहीं। कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अब्दुल रहमान का कहना है कि शहद में दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से बेबहा फ़वाइद हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस शोबे पर तवज्जो दे ताकि इस कारोबार से मुंसलिक अफराद की मुश्किलात में कमी हो।